So let's talk about some history of the electricity and magnetism. So many applications of electricity and magnetism today, every device we use that have the use of the electricity, there are some magnetic components, magnetic field, electric field, but that starts from the early 2000 BC. There are some documents which are cited by the Chinese that around 2000 BC, magnetism was observed, and they know how the irons, some ores of iron, they attract the iron pieces. The Greeks, they used 700 BC electrical and magnetic phenomena. That was not like this, but the real journey starts from 1600 and 1700. That is Charles Coulomb, that lays the foundation of electric forces. In 1819, Hans Oersted found a compass needle deflected when near a wire carrying an electric current. Faraday, Henry, they did works on magnetism and electricity. James Maxwell used observations and other experimental effects as a basis for formulating the laws of electromagnetism. Maxwell prediction, electromagnetic waves. So today we see the modified version, the latest version of all these fundamental concepts that originated at 1600, 1700, and today we see that every device that composed of electricity, electric components, make use of magnetic components. So we will start from these basic concepts, that what are the electric charges. So there are two kinds of charges, positive charges and negative charges. The negative charges are possessed by electrons, and the positive charge that is possessed by the protons. So charges of the same sign repel one another, and charges with opposite signs attract one another. So we know that every molecule has atoms, and inside the atom there are positive charge and negative charge. Due to that attractive forces, the atom have some definite shape. These electrons revolve around the nucleus in a stable format, and they are bonded due to that electromagnetic forces. ठीक है? अगर ये force उसके दरमियान ना हो तो वो आपस में जुड़े नहीं रह सकते. Examples that positive and negative charges attract each other. This is one of the rubber rod that is suspended from the cord, and that is allowed to freely move. So if we take another glass with positive charge and moving this rod to near the rubber rod, so there will be a force of attraction. They will attract each other. Similarly, if they have the same charges, so they will be repel each other. So there will be force of repulsion between the same charges. Electric charge is always conserved in an isolated system, so it is not created in the process of rubbing two objects together or making them. अगर वो करीब आ रहे हैं तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें हमारे पास चार्ज क्रिएट हो जाता है या कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, बल्कि चार्जेस कम या ज्यादा होने की वजह ये होती है कि देयर इज अ सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क से हम उसके साथ रब करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू दी सिल्क, ठीक है। अब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक द सिल्क cloth is the negative. Relatively they are becoming negative. तो चूंकि ग्लास की रॉड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इम्बैलेंस आ जाता है प्लस और माइनस में, तो द रॉड बिकम्स रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखते हैं कि बचपन से हमारी एक एक्टिविटी होती थी कि हम किसी चीज को या तो सर के साथ हम रब करते थे और पीस ऑफ पेपर्स हम उससे अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो जो वुलन कपड़े हैं आजकल जो सीजन में आ रहे हैं तो उसमें भी कभी कभार अगर हम किसी बंदे को भी हाथ मिला लेते हैं तो वो भी बिल्कुल करंट सा हमें महसूस होता है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू दी ट्रांसफर ऑफ चार्ज के जो सिल्क के कपड़े हैं या जो वुलन कपड़े हैं उसमें हम किसी चीज को उसके साथ रब करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रोसेस होता है। The electric charge Q is said to be quantized, means the charges are in the discrete packets, ठीक है। और उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज या प्रोटॉन इंक्रीजेज तो हमारे पास चार्जेस जो हैं उसको हम उस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 और द सेम चार्ज एग्जिस्ट ऑन द प्रोटॉन एज वेल। कुछ हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की कि कंडक्टर कौन सी चीज है। So you are familiar with the conductors that they have enough free electrons. So free electron कौन से होते हैं? Which are loosely bound to the atoms. The forces between these electrons and the central nucleus that are weak. ठीक है, वो weak होते हैं और उसको वो allow होते हैं कि वो freely move कर सकते हैं, ठीक है। तो good conductors include the copper, aluminium, silver, gold, even iron. These are the good conductors of electricity. That is why in number of electronic devices we have the copper loops, ठीक है। aluminium आप देख रहे हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर्स यूज होते हैं वो मोस्टली एल्यूमिनियम के हैं। यस, इस तरह सिल्वर भी यूज होती है, इवन गोल्ड भी यूज होता है कंप्यूटर डिवाइसेस में, ठीक है। तो व्हेन अ गुड कंडक्टर इज चार्ज इन अ स्मॉल रीजन द चार्ज रेडिली डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द मटेरियल। Insulators क्या है? In contrary to the conductors, there are no free electrons in the insulator. जो electrons होते हैं वो strongly bound to the atoms हैं, so that are not allowed to move freely. So examples of good insulators are glass, rubber, wood. So these are the इवन प्लास्टिक वगैरह ये भी इंसुलेटर्स हैं। So when a good insulator is charged in a small region, the charge is unable to move to other regions of the material. इसकी हम अभी एग्जांपल पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। In between conductors and insulator, there are some other materials which are we call it semiconductors. So they have the properties between those of insulators and conductors. So silicon and germanium, they are the famous materials which are used in semiconductor application. और semiconductors में हमारे पास जो electricity, flow of electricity होती है, that is due to the some electrons, or we call it due to holes, ठीक है।
या वैकेंसी फ्लो होती है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और उसमें फिर हम पढ़ते हैं कि ये पीएन जंक्शन है और पीएनपी जंक्शन है, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सारे जो हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे समवट लाई इन बिटवीन देम। ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जिसकी वजह से ये यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये वो एक पॉइंट जो हमने पढ़ लिया कि अगर हम चार्ज करते हैं किसी कंडक्टर को तो उसमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फीयर है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली अमाउंट में है और किसी खास डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, तो अगर हम उसको चार्ज करना चाहते हैं तो हम कैसे चार्ज करेंगे? थ्रू इंडक्शन प्रोसेस। Induction means that the other component that will not physically in contact with this, बल्कि वो इसके करीब आकर ही उस पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज को हमने करीब ले आया इस स्फीयर में, जिसमें हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि उसमें प्लस भी है, उसमें माइनस भी है। तो होगा क्या कि द पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव and the negative there will be a force of repulsion between them। ठीक है, तो इस रिपल्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास मूवमेंट कर लेगी। ठीक है, वो इस तरफ, इस साइड पे मूव करेगी। अगर हम इसको ग्राउंड करते हैं, ठीक है, सो ग्राउंडिंग की वजह से हम अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू द ग्राउंड वायर टू द रिजर्वायर लाइक अर्थ। ठीक है, और फिर इसी ग्राउंड को हम हटा लेते हैं आफ्टर सम टाइम, और इसको भी हम हटा लेते हैं। सो नाउ द स्फीयर विल हैव सम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज that is increasing the number of negative charge। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास क्या है, वो कम है। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हैज बीन इंड्यूस्ड इन दिस स्फीयर। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो विदाउट टचिंग दीज हमारे पास ये एक इंडक्शन आ गई, इंड्यूस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अगर हम उसको हटा लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो कि एक साइड पर थे, ठीक है, राइट साइड पे थे, तो दे रीडिस्ट्रीब्यूट इन द एंटायर स्फीयर। ठीक है, वो इस पॉजिटिव चार्ज के मुताबिक जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होते, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते चार्जेस। ठीक है, बल्कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स उसमें हमारे पास पोलराइजेशन हो जाती है, पोल्स बन जाते हैं। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हम अगर किसी इंसुलेटर के सामने ले आते हैं, ठीक है, करीब लाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल है वो अकॉर्डिंग टू दैट चार्ज उसमें पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O है, तो उसमें एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, एक प्लस है, दूसरा माइनस है। ठीक है, तो वो आपस में उस प्लस माइनस की वजह से बैलेंस होते हैं, तो उसमें पोलराइजेशन हो जाती है कि ऑक्सीजन मतलब जो नेगेटिव एटम है वो इस साइड पे हो जाते हैं और जो प्लस होते हैं वो इस साइड पे हो जाते हैं। तो इस पोलराइजेशन हो जाती है उसमें ये नहीं होता कि एक पूरा का पूरा वो मूव कर जाए चार्ज एक साइड पे और दूसरे साइड पे। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं होती बल्कि पोलराइजेशन हो जाती है।
Charles Coulomb, he was the French physicist. He did a lot of contribution in the field of electrostatics and magnetism. He also worked in the strength of materials, structural mechanics, ergonomics, different fields में उसने काम किया है. आगे जाके आपको मुख्तलिफ फील्ड्स में उसके जो काम है वो आपको नजर आएंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने 2 चार्ज स्फीयर ले लिए, ठीक है, और उस चार्ज स्फीयर की दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको उसने मेजर किया, ठीक है. एंड अपॉन हिज एक्सपेरिमेंट ही सेज उन जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको एज अ पॉइंट चार्ज भी हम कंसिडर कर सकते हैं. ये जिस तरह हमने पार्टिकल मॉडल अप्लाई किया काइनेमेटिक्स में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज की टर्म्स में हम कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसको हम एज अ पॉइंट चार्ज भी मॉडल कर सकते हैं अगर उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं उसका मैथमेटिकल रिलेशन उसको सामने ले आता हूँ कि the force of attraction or repulsion that is directly proportional to the magnitude of the charges, individual charges. It is the directly proportional to the magnitude, the product of magnitude of the charges. It may be same or it may be different, and inversely proportional to the distance between the charges. So Fe that is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. तो ये हमारे पास, और इसको हम जब मिलाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है Ke, which is called the Coulomb's constant, or Coulomb's constant that is equal to 1/4 pi E naught, where E naught is the permittivity of the free space. So this is constant and this is the proportionality के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास प्रोपोर्शन है इस एक्सपेरिमेंट में. So the charges are in terms of coulombs. One electron that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So 1 coulomb needs 6.24 into 10⁻18 electrons or protons. So typical charges can be in the microcoulomb range. So electric force is also, since it is a force, so it is a vector quantity, but this is the field force that we have talked earlier. कि हमारे पास कुछ forces वो field forces हैं, कुछ हमारे पास contact forces हैं. So this is the field force. This is the masses and charges of the electron, proton and neutron. Vector nature of the electric forces, ये हमारे पास 2 charges हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. तो इसमें हमारे पास जो 1/2 force है, this is in this direction, 2/1 force है, this is in this direction. लेकिन the magnitude of both the forces that will be same. So the like charges produce a repulsive force between them, and the unlike forces there will be attraction forces. So both forces are same, but they have the opposite direction, which is distinguished by this minus sign. So with like signs of the charges, the product Q1, Q2, this is positive, and the negative force and the force is repulsive.
अनलाइक वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे। So this is the unlike charges, they have the attractive forces, but again the F21 and the F12, they have the different directions. Okay. So the sign of the product Q1, Q2 gives the relative direction of the force between Q1 and Q2. The absolute direction is determined by the actual location of the charges. इस पे हम कुछ examples करेंगे। अगर हमारे पास different charges हैं किसी भी system में, so the resultant force that will be equal to the summation of all these forces due to these charges. तो जरूरी नहीं कि हर दफा हमारे पास दो चार्जेस हों। अगर दो से ज्यादा हमारे पास चार्जेस हैं तो फिर हम रिजल्टेंट फोर्स की तरफ जाएंगे कि रिजल्टेंट फोर्स इन सब चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उसका समेशन क्या है, उसका नेट क्या है। लाइक दिस एग्जांपल, अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3, ठीक है, तो दिस इज द Q3, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Q1 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो डिस्टेंस इज गिवन विच इज इक्वल टू A, ठीक है। सो दिस मेक्स अ ट्रायंगल and this is the hypotenuse according to Pythagoras theorem. This is equal to 2 under root 2a. So the forces due to this positive charge on the Q3, so this is equal to F13 in this direction, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है। So this is the force due to this positive Q1 charge on Q3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है तो दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू Q2 हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है इस Q3 पे, सो दिस इज द F23। अब जब आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। So you can find out the resultant, just we find out the resultant in our previous chapters. So now it is a force, so do not take in the mind कि ये electric force है। तो forces are forces, ठीक है, चाहे वो physical contact से हो या किसी field forces की वजह से हो, उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस अपने चैप्टर्स में हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है, इस तरह हमने उसमें रिजल्टेंट फोर्स को निकाला है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स बाय द ग्राफिकल मीन्स एंड वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो इन आइदर केस यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। Now this is one of the example given in the book that if you have given the charges on Q2, you know the Q2 charges and you know the Q1 charges, and there in between there is a negative charge, so that it lies at equilibrium, ठीक है। ये ऐसी पोजीशन पे है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, ठीक है। So you have to find out the x, the distance between Q2 and Q3. So इसमें हम देखें कि both are in the x direction, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है that will be equal to F23 plus F13. Since it is in equilibrium condition, क्योंकि ये equilibrium condition में है,
तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्या है, वो रिजल्टेंट हमारे पास है 0। ठीक है। अब जब रिजल्टेंट 0 होगा तो हम कहेंगे कि F23 that is minus F23 that is equal to F13। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके डायरेक्शन को भी करें तो ये हमारे पास पहले से माइनस F23 प्लस F13, सो दिस विल बी इक्वल टू F23 दैट इज इक्वल टू F13। ठीक है। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि F23 क्या होगा, Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, और Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस अगर हम लेते हैं Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो दिस विल कैंसल आउट, और R स्क्वायर यहाँ पर है x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, यहाँ पर हम Q3 को भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, you can cancel out this, so this will be equal to Q2 divided by x square, Q1 divided by 2 minus x whole square. So by rearranging, this will be formed in the quadratic equation, and you can find out the value of x at which this equilibrium occurs. So there will be two values, one is positive and the other one, this will be negative. So this is the x, this is the origin, this is the y direction. So it means that there is some other point at this negative point, because when you solve the quadratic equation, there will be two roots. x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी जिस पर हम कहते हैं कि दोनों फोर्सेस क्या है, वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहां पर रिजल्टेंट हमारा क्या था, 0 था। और एक नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब है कि किसी और पॉइंट पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है। अगर हम इस चार्ज को उठा के यहां पर रख दें तो यहां पर भी ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी वेक्टर नेचर ऑफ दी फोर्सेस। कि उसकी जो वेक्टर नेचर है उसको हम यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा। दूसरा, इस बुक में बहुत दिलचस्प पॉइंट रेज किया गया है और उसको डिस्कस किया गया है कि अगर हम इस पॉइंट को, इस चार्ज को अगर हम मूव करें, फॉर एग्जांपल यहां पर हम उसको मूव करते हैं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, so what is your suggestion that if we displace this charge to this point, what will happen? Either it will come back to the equilibrium point, or means whether it will be a stable equilibrium or it will be unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Why it will be unstable equilibrium? Because the attraction between Q2 and Q3 will become less, and the attraction between Q3 and Q1 will become more. So the Q3 will tend to go towards Q1 rather than coming back towards Q2. Exactly. You are right. That now the equilibrium, since the balance of the forces disturbs, so there is not the attractive forces that it will attract towards this initial equilibrium position. Rather, there will be unbalance of the forces. So the unbalance of forces
the charge will move away from the equilibrium position. So this is the unstable equilibrium. So this is T sin theta minus Fe that is equal to 0. एक हमारे पास summation of forces in x direction से हमारे पास ये आ गया, और summation of forces in y direction में जब हम करते हैं तो that will be T cos theta minus mg, that will be equal to 0. Provided we have the coordinate system, this is the positive x and this is the positive y direction. Okay, so according to that coordinate system, we can resolve the forces into its component. Okay, तो थीटा ये वाला थीटा लिया है, चाहे आप कोई और थीटा भी ये वाला भी ले सकते हैं. ठीक है, so that will be 90 minus theta some value. 5 डिग्री है तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 85 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, if this is equal to 5 degree, so that will be equal to, तो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं. यहाँ पर फिर साइन थीटा की बजाय कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा की बजाय साइन थीटा आ जाएगा. So from this relation we will find out the electric force. हम इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम कर लेंगे. ठीक है, टेंशन के बारे में हमें मालूमात नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को एक दूसरे पे डिवाइड करके टेंशन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम Fe को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी डिवाइड दिस, ये हमारे पास आ गया T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, और एक हमारे पास आ गया T cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg. So if we divide this by this, so we will have tangent theta Fe over mg. So we can find out the electric force. हम इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम कर सकते हैं. So once we find out the electric force, we can find out electric force that is equal to K. Since they are same charges, so this will be KQ square divided by R square. So the distance between them, that is, we can find out through trigonometric relationship. We can find out A by any trigonometric relation, that is sine theta, that is equal to A over L. So A is equal to L sine theta. So the distance between them, this will be 2A. वो हमारे पास हो जाएगा 2A is equal to R. ठीक है, सो A आप इस तरीके से मालूम करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो आपके पास ये आ जाएगा R. ये हमारे पास होगा R. ठीक है, सो सिंस इट इज अ सिमेट्रिक, ये थीटा और ये थीटा बराबर है. ठीक है, सिमेट्री है इसमें, इस प्रॉब्लम में. So now we have only one unknown, which is the Q. So you can find out the Q charge. इसमें भी दिलचस्प एनालिसिस है, और वो ये कि अगर हमारे पास ये चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, so क्या सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम डिस्टर्ब होगी अगर हम इसको अनलाइक चार्ज हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव चार्ज? विल द सिमेट्री डिस्टर्ब्स? अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज से हम उसको रिप्लेस करें विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनलाइक चार्ज हो जाए, यहाँ पर तो लाइक चार्जेस हैं, अगर अनलाइक हो जाएंगे तो क्या सिमेट्री डिस्टर्ब होगी? यस सर. कैसे? सही है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को इसलिए. हाँ, लेकिन फोर्स तो सेम होगी ना, चाहे रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो. ज्यादा कम की वजह से भी नहीं होगा और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव है,
उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारे पास उसकी सिमेट्री वो खराब नहीं होगी। हाँ, एंगल हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड पे है तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे है। क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी भी है, सो सिमेट्री हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब ये एंगल चाहे इस साइड पे हो तो इस साइड पे हो, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरे, अगर हमारे पास ये कम ज्यादा होंगे तो तब भी हमारे पास नहीं डिस्टर्ब होंगी। हाँ, अगर हमारे पास मासेस डिफरेंट हो जाएंगे ना, इफ वी हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है, एक हमारे पास बड़ा है, एक हमारे पास छोटा है, ठीक है, तो तब हमारे पास ये सिमेट्री, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली सिमेट्री है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल एक एंगल बराबर हैं, ठीक है, तो दूसरी हमारे पास शायद इस तरह हो और ये इस तरह हो, एक एंगल हमारे पास छोटा हो, दूसरा हमारे पास बड़ा होगा, तो उस केस में हमारे पास सिमेट्री खराब हो जाएगी, यानी कि दोनों एंगल्स क्या होंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ कम हो जाएगा, ठीक है। तो this will be bigger than this one, so there will be some imbalance of these angles, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद हम एक और टर्म है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। Faraday developed the concept of field in terms of electric fields. So it is said to be the region of space around a charge object. किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है, वो हमें तभी पता चलता है कि अगर हम कोई और चार्ज उसके फील्ड में ले आए, ठीक है। तो अगर कोई और चार्ज हम लाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज को अगर हम सोर्स चार्ज के फील्ड में ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अगर हम किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज को ले आते हैं और उस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, सो हम कहते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ठीक है। सो Q नॉट इज द सोर्स टेस्ट चार्ज, और जो सोर्स है उसकी वजह से जो इस टेस्ट चार्ज में जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, सो उनकी रोशो को हम कहते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। So this will be equal to Newton divided by Coulomb. So E is the field produced by some charge or charge distribution separate from the test charge. So the existence of an electric field is a property of the source charge. ठीक है। So test charge उसको सिर्फ सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज है। So the presence of the test charge is not necessary for the field to exist. टेस्ट चार्ज का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसको डायग्नोज किया जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। So the test charge serves as the detector of the फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो प्रॉपर्टी है सोर्स चार्ज की।
So the direction of electric field is that of the force on a positive test charge. Okay? So this is the direction of the electric field. ये हमारे पास एक positive test charge है Q naught और ये हमारे पास source charge है. तो यहाँ पर जो force of repulsion इस पे लगेगी, so that is the direction of the electric field. So we can also say that an electric field exists at a point if a test charge at that point experiences an electric force. अगर उस पे कोई force act कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर electric field मौजूद है. We can say that electric force is equal to QE. This is valid for a point charge only, one of zero size. For larger objects, the field may vary over the size of the object. So if Q is positive, the force and the field are in the same direction. If it is negative, it is in the opposite direction. So we can apply the same Coulomb law on this source charge and test charge. Okay? So this is the source and this is the test charge. So the electric field, by the definition of the electric field, electric force divided by the test charge, so that will be equal to KEQ over R square. Q naught will cancel with the Q naught. So this is the another presentation of the electric field. So we can also write it in the form of the source charge and the distance between the source and the test charge. So if Q is positive, and this is the positive test charge, so this will be the direction of the electric force, and this will be the direction of the electric field. If it is negative, source charge is negative, so this will be the direction of the electric force, and this will be the direction of the electric field. Now, if we have a number of charges, so what will be the electric field due to all charges? So we will use the superposition principle. We will sum up all the intensity of electric field due to the individual charges, and we will sum up to make the resultant electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट है, जो नेट है, we will find out by the summation of all these electric fields. पिछले स्लाइड्स में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की, उसकी वेक्टर नेचर की बात की, कि कैसे हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उसकी भी एक डायरेक्शन होती है, तो वो भी एक वेक्टर, उसको भी हम वेक्टर की फॉर्म में लिख के उसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव द पॉइंट P एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट electric field due to this positive charge, due to this negative charge. So we know that the electric field at that point due to positive charge, this will be in this direction. ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन होगी. और जो नेगेटिव है, जिस तरह हमने इसमें हमने कहा कि नेगेटिव में हमारे पास टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरी डायरेक्शन होगी. नाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द E1 and E2, so this will be the vector sum of E1 plus E2. So we can resolve this into the components. XY component, this is the positive X direction, this is the positive Y direction. So we can resolve this into X component, Y component, resolve this into X and Y component, and then we combine the X component, the Y components, and we will find out the
resultant. Continuous charge distribution that was related with the point charges, ठीक है. लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पे कंटिन्यूस चार्ज है, ठीक है, it means कि वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम उसको एज ए कंटिन्यूस चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, स्मॉल चार्जेस, and they are closely packed to each other. The distance between these individual charges are less as compared to the dimension of the object. Okay? So the distance between charges in a group of charges may be much smaller than the distance between the group and a point of interest. In this situation, the system of charges can be modeled as continuous. A system of closely spaced charge is equivalent to a total charge that is continuously distributed along some line over some surface throughout the some volume. So उसको जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको बेसिकली सम अप किया जाता है ओवर द एंटायर एरिया, ओवर द एंटायर लेंथ और ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. For example, we have this kind of object and we have the small charge inside, which is the delta Q. So at point P, there will be an electric force, there will be an electric field at some distance. Okay. So there are also number of charges just like delta Q. So due to individual charge, this will be equal to delta Q over R square. And if we have number of these charges, ठीक है, अगर हमारे पास और बहुत से charges हैं, तो उसको हम sum up कर लेते हैं, ठीक है. So the electric field will be the summation of all the electric field due to the individual charges. यहाँ पर limit का concept आ जाता है कि अगर ये बहुत ही approaches to zero हो, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि उसको हम फिर सम अप कर लेंगे, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू द दैट ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे पहले हम एक और टर्मिनोलॉजी को भी डिफाइन कर लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या चीज है. द टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज ऑफ द वॉल्यूम डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. इस तरह हमारे पास डेंसिटी है मास पर वॉल्यूम, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास मास की जाए हम चार्ज लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी क्या चीज है? सरफेस डेंसिटी मीन्स देन व्हेन वी डिवाइड बाय द एरिया, ठीक है. तो दैट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. हम कोई एरिया अगर लेते हैं, कोई प्लेट लेते हैं या हम स्फेरिकल सरफेस का अगर सिर्फ सरफेस लेते हैं तो हम फिर उसका सिर्फ एरिया कंसिडर करेंगे. सो दैट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी Q ओवर L. सर ये सिग्मा सर ये डेंसिटी को शो कर रहा है या चार्ज को? ये डेंसिटी है. दिस इज द डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है. और ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. तो दिस विल बी ए कूलम पर मीटर. दिस इज कूलम पर मीटर स्क्वायर and this is coulomb per meter cube. Okay, sir. If the charge is non-uniformly distributed over a volume, surface or line in the amount of charge, so for the volume we will use this
अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली नहीं है, देन वी हैव टू यूज द डिफरेंशियल टू फाइंड आउट द चार्ज। किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं, इसमें हम ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर ये सॉल्विंग मेथडोलॉजी पे आ जाते हैं। ये यहाँ पर आप देखने की एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मालूम करना है ड्यू टू, और इनमें सारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस रिंग, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो वी विल एनालाइज, स्टार्टिंग एनालिसिस हमारा क्या होगा, हम पॉइंट चार्ज से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, डिफरेंशियल चार्ज है डी क्यू, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। सो रेडियस, ये सेंट्रल डिस्टेंस हमें मालूम है ए, और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दिस इज आर, ठीक है, और ये हमारा पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, उसका हमने कंपोनेंट लिया डी ई एक्स, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है, उसको जब हम कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट लिया, ठीक है, तो दैट इज द कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, एक्स ओवर आर है, ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेन्यूज को मालूम किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इन द एक्स फॉर्म। चूंकि हमारे पास वाई को हमने यहाँ पर नहीं लिया, उसकी वजह ये है कि वाई यहाँ पर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरे पॉइंट को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर कंसिडर किया गया है, तो इसकी वजह से जो वाई कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और वन की वजह से जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो वाई कंपोनेंट है वो आपका कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके सम अप हो रहे हैं, ठीक है, ये एक एक्स कंपोनेंट है, ये दूसरा एक्स कंपोनेंट है, तो दिस विल दे हैव द सेम डायरेक्शन, तो ये सम अप हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो वाई डायरेक्शन में है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। सो वी टेक ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द एंटायर सरफेस, सो अगर एंटायर सरफेस का हमें चार्ज मालूम है, ठीक है, which is q, so we can find out the electric field at that particular point by this relationship. So इस तरीके से हम पॉइंट चार्ज से स्टार्ट लेके अगर हमारे पास टोटल चार्ज मालूम हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट की वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं, मालूम करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम हो, सो फॉर एनालिसिस वी विल टेक द स्मॉल स्ट्रिप हैविंग डिफरेंशियल लेंथ डी आर, उसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल एरिया ऑफ दिस रिंग, दिस शेडेड रिंग, ठीक है, ये जो शेडेड रिंग है इसका हम एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। सो वंस वी इंटीग्रेट ओवर द फ्रॉम 0 टू दिस होल लेंथ, सो वी विल गेट द होल चार्ज ऑफ द प्लेट। तो उसको भी हम उस किसी पॉइंट पे अगर हम ये पॉइंट हमें गिवन है तो इस रिलेशनशिप से हम उसको मालूम कर सकते हैं।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे मैं थोड़ा जाता हूँ. So conceptualize, establish a mental representation of the problem. Image the electric field produced by the charges or charge distribution. उसको अगर हम डायग्राम ड्रा कर लें. Categorize क्या इंडिविजुअल चार्ज है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस हैं या कंटिन्यूस चार्ज हैं. तो अगर इंडिविजुअल चार्ज है तो आप जस्ट रिजल्टेंट नेचर को लेके एक्स वाई कंपोनेंट में ड्रा करके आप मालूम कर सकते हैं. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चार्ज हैं तो आप समेशन कर सकते हैं. ठीक है, रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं. ठीक है, बाय द वेक्टर नेचर ऑफ द फोर्सेस. कंटिन्यूस चार्ज है तो आप इंटीग्रेशन और जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं उसको आप यूज कर सकते हैं. Analyzing a group of individual charges, use the superposition principle. Find the fields due to the individual charges at the point of interest and then add them as the vectors to find the resultant field. Be careful with the manipulation of the vector quantities. कि vector quantities को हम किस तरह तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या उस तरीके से जो हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आपने ख्याल करना है कि वेक्टर सम और ऑर्डिनरी सम में फर्क होता है. ठीक है. एनालाइजिंग अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज हो तो फिर हम उसको किस तरह एनालाइज करेंगे. सो द वेक्टर सम्स फॉर एवेल्युएटिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द वेक्टर इंटीग्रल्स. डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू इनफिनिटेसिमल pieces. Calculate the vector sum by integrating over the entire charge distribution. तो हम पहले इंडिविजुअल चार्ज करके फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं over the entire area. Take advantage of any symmetry to simplify calculation. जिस तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तो उसमें हमारे पास सिमेट्री थी तो हमने एक साइड पे एनालिसिस करके हमने कहा कि दूसरी साइड पे भी इसी तरह हो रहा है. ठीक है, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिमेट्री. या जिस तरह हमारे पास रिंग था तो उसमें भी सिमेट्री था तो एक पॉइंट चार्ज हमने लेके उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया. और सिमेट्री का फायदा हमने ये उठाया कि जो मुखालिफ पॉइंट होगा तो उसकी वजह से जो वाई कंपोनेंट बन रहा है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीजें हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E is tangent to the electric field line at each point. Imaginary lines. ये इमेजनरी लाइन है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. ओके सर. अगर हमारे पास किसी भी एरिया में उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये देखें क्लोजली है पैक है तो हम कहेंगे कि ए में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस वो सेम नहीं है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म. हाँ, उसमें अगर हमारे पास इस तरह सेम लाइंस होंगी सेम डिस्टेंस तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म है. तो प्रॉब्लम में अगर इस तरह गिवन हो तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इस तरह हो कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम है तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल पॉजिटिव चार्ज है सिंगल तो हम कहते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेडियली आउटवर्ड लाइन. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड लाइंस. For the negative charge, it is radially inward lines. If we have these plus and minus,
So the electric field lines will start from the positive and terminate at negative. Okay. Similarly, at the other direction, there will be some lines, but due to the greater distance, they may not terminate. So there will be a discontinuity between these lines. So a positive charge, so they will repel each other, so they will not terminate each other. If we have the unequal charges, this is plus 2q, this is signal minus q. So some of the lines that will terminate, and the other lines, they will go beyond these terminations and they will not terminate on this point. Due to the higher intensity of the electric field, इसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी कम है, तो Q के साथ तो मिल जाएगा, लेकिन एक Q की मिकदार जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, and they will radially outward and they will not terminate at this minus. So the rules to draw the electric field lines, so it must begin on a positive charge and terminate on a negative charge. In case of an excess of one type of charge, just like in the previous slide, some lines will begin or end infinitely far away. The number of lines drawn leaving a positive charge or approaching a negative charge is proportional to the magnitude of the charge. No two field lines can cross. Remember, field lines are not material objects. Okay? They are a pictorial representation used to qualitatively describe the electric field. उस लाइन से हम अंदाजा लगाते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी क्या नेचर है. ठीक है, so this is only representation. These are the imaginary lines to qualitatively describe the electric field. So that was related with the static charges. What will happen when the charge move? Okay. So motion of a charged particles. When a charged particle is placed in an electric field, it experiences an electric force. ये तो हमें पता है. एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको प्लेस किया जाता है, so it will experiences electric force. If this is the only force on the particle, it must be the net force. अगर कोई और फोर्स नहीं है बैलेंस करने के लिए, so that force will be the net force. And the net force will cause the particle to accelerate according to Newton's second law. Okay, so the Newton's second law, that is equal to, that is F is equal to ma, and this is the net force. So electric force, this is QE into is equal to ma. If E is uniform, then the acceleration is constant. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? That will be constant. If the particle has a positive charge, its acceleration is in the direction of the field. Okay. If the particle has a negative charge, its acceleration is in direction opposite to the electric field. Since the acceleration is constant, the kinematic equations can be used. ठीक है, अब चूंकि मोशन आ गया है, ठीक है, तो न्यूटन लॉज और काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये सारी चीजें फिर यूज हो सकती हैं. ठीक है, सिमिलरली एनर्जी कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे. फिलहाल यही है कि यहाँ पर हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो हम फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मॉडल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मॉडल, ठीक है। सो उसकी इक्वेशन आपको याद होगी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, हाँ, और 2ax vf square minus vi square. So these are the kinematic equations which we can use to find out the motion characteristics of the charged particle. उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये सारी चीजें आप मालूम कर सकते हैं इन्हीं इक्वेशन को यूज करके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। So this is the electric field. The electric field line started from the positive charge and it terminates on the negative charge. So this is the uniform electric field because the distance between these lines it is same, ठीक है, throughout the region. जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म हो गया तो अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर पार्टिकल की मोशन होगी तो that will have the constant acceleration. और डायरेक्शन को भी हम मालूम कर सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हमने रूल पढ़ लिया कि नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है so that will move opposite to the direction of the electric field. तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये it moves, क्योंकि इसकी हमारे कोई इनिशियल वेलोसिटी है तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास आ जाता है कि इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से कि उसका एक कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो इट इज मूविंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। So if the electron is projected horizontally into a uniform electric field, the electron undergoes a downward acceleration. It is negative, so the acceleration is opposite the direction of the field. Its motion is parabolic while between the plates. तो इसकी स्टेटमेंट वगैरह पढ़ लें, ये भी एक एग्जांपल है लास्ट। लास्ट अगर हम पढ़ लेते हैं, an electron enters the region of a uniform electric field as shown in the figure. It has some initial velocity. The strength of the electric field is given. The length between them is the positive and the negative plate is also given. Find the acceleration of the electron while it is in the electric field. So we need to find out the acceleration. So in the y direction, we have the electric force in the y direction. So electric force is equal to charge multiplied by the electric field divided by the mass of the particle. So it will give us acceleration. So this is summation of forces into my. Assume the electron enters the field at time 0. Find the time at which it leaves the field. So you can find out the time. We know from this equation xf is equal to xi
Thus, by the definition of the average velocity, we can find out the time, which is the xf is the length covered according to the distance between the plates divided by Vx. So it is this Vx is given. So we can find out the time. So using that kinematic equation, we can find different things. Assuming the vertical position of the electron as it enters the field, this is 0. What is its vertical position when it leaves the field? So you can find out the final position by this equation. So this is 0, this will be 0, and we know the acceleration in the y direction, and we know the time, so we can find out the yf. So yeah, this is all about the electric field, and this whole chapter finished here. Any question related to the present topic? नो सर। एयर कॉम वाली एग्जांपल पढ़ी थी आपने बताई कि उसके अंदर जो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा सर? अपोजिट चार्जेस होंगे, जो भी चार्ज होगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक अगर हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव है, दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। सर वायर ग्राउंड करने से क्या मुराद होता है? किस चीज का? वायर को ग्राउंड करने से क्या मुराद होता है? वायर जो ग्राउंडिंग हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में भी हम ग्राउंडिंग करते हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे आपने देखा है कि जो स्टील के या आयरन के डंडे इस तरह लगे होते हैं, वो बिल्कुल बहुत डीप अंडरग्राउंड में उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा थंडर स्टॉर्म्स होते हैं या थंडर्स होते हैं, वो भी चार्जेस होते हैं बेसिकली। तो जो वो चार्ज जब आते हैं तो वो उसको ग्राउंड कर लेते हैं। वो एक रिजर्वायर एक करता है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ की कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ग्राउंडिंग करते हैं वो यूजुअली हम एक रिजर्वायर उसको हम प्रोवाइड करते हैं कि उसमें से हम चार्जेस को सेपरेट कर सकें किसी भी सिस्टम में। तो कोई अनअवॉइडेबल चार्जेस अगर आते हैं तो उसके लिए किसी इक्विपमेंट को बचाने के लिए उसके लिए ग्राउंडिंग दी जाती है, ठीक है। बिल्डिंग के लिए या किसी भी इक्विपमेंट में ग्राउंड अगर उसकी सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ठीक है। यूजुअली हमारे लोग उसमें से ग्राउंड हटा देते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव वो दे देते हैं। यस सर। ओकेजनली अगर हमारे पास बिजली की कोई हायर वोल्टेज उसमें आती है तो बस क्या होता है कि वो इक्विपमेंट पारे हो जाता है, ठीक है। तो अगर ग्राउंडिंग की जाती है तो इससे इक्विपमेंट की सेफ्टी भी है, वायरिंग की सेफ्टी भी है, ह्यूमन की सेफ्टी भी है और बिल्डिंग की सेफ्टी भी है। लेकिन यूजुअली हम ग्राउंड को बस हटा देते हैं कि बस इसको हटा लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो ग्राउंड जो है वो एक रिजर्वायर देता है, एक पैसेज देता है आपको। अगर हमारे पास कोई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आते हैं तो उसके लिए हम एक रास्ता उसको दे देते हैं कि दैट शुड फ्लो इन दैट डायरेक्शन, ठीक है।